अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? आज हम इंग्लिश 508 का लेसन नंबर जो 2 है वो पढ़ने जा रहे हैं। सिमेंटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। प्रीवियस लेसन जो था लेसन नंबर 1, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स का। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स क्या है, ब्रांचेस हैं, ये मतलब सब फील्ड कहते हैं लिंग्विस्टिक्स के। ठीक है, तो वो आप लोगों ने लेसन सुना होगा, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लें आप। नेक्स्ट आज हमने टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करना है, सिमेंटिक्स इन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में मतलब कि सिमेंटिक्स का क्या रोल है, हमने ये पढ़ना है। Semantics is a technical term used to refer to the study of meanings. ठीक है, the meaning covers a variety of aspects of meaning, but unfortunately there is no general consideration to describe it. ठीक है, ये किसने के पामर जो है इसने 1997 में ये बात की है। Modern linguistics includes various meditations regarding the knowledge of linguistics. जो modern linguistics है उन्होंने क्या किया है कि जो वेरियस मेडिटेशंस है रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, उस हिसाब से मतलब इसमें जो है वो चीजें ऐड करते गए हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस एंड मीनिंग। ठीक है, सिंस द linguistic description is an attempt to show a speaker's knowledge, semantics is ascribed to elaborate semantics knowledge. Semantics has an association with the other fields of studies, ठीक है, कौन सी, philosophy and psychology, as they also investigate the creation and transmission of the meaning. One thing is to keep in mind is that an individual's meaning is not a part of the general study of semantics. जो individual meaning है वो क्या है कि general study of semantics का जो part है वो नहीं है। टॉपिक नंबर 7 हमारा semantics in a modern grammar। मोड ऑफ ग्रामर में semantics अब क्या है? According to Palmer, almost all the linguists, overtly or covertly, admit that in a linguistic model, semantics is one end and phonetics on the other. ठीक है, जो semantic क्या है कि one end है और phonetics क्या है on the other, while grammar is at somewhere in the middle. जो grammar है वो कहीं दरमियान में। Many other linguists argue that the aim of doing semantics is to set up a component of the grammar which is parallel to the other ones. Yes, syntax or phonology. The syntax or phonology के parallel है। अब क्या कि phrases and sentences also have the meanings. Phrases और sentence क्या उनके meanings हैं of course, but an important difference between word meanings on one hand and the phrases and sentences meanings on the other concerns productivity. मतलब कि अब एक वर्ड है उसका मीनिंग और है, फ्रेज है उसका मीनिंग और बनता है, और जब हम वो सेंटेंस में चीज जा रही होती है तो वो मतलब मीनिंग के लिहाज से वो चीज चेंज हो जाती है। There is always a possibility to create new words, but relatively it is not much frequent to occur. Chomsky, in particular, has commented on the creativity of the sentence formation. It is one of the generative grammar's most important insights that relatively a small number of combination rules allow the speakers to use a finite set of words to create a very large and infinite number of sentences. To allow this, the rules for sentence formation must be recursive, allowing the repetitive embedding of continuation of syntactic categories। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि infinite जो सेट है, ठीक है, तो वो क्या है और infinite सेट क्या है। मतलब ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी मैथ में अगर हम कंसेप्ट इसका देखें। आगे है इसके, ठीक है, लिमिटेड वगैरह का और अनलिमिटेड वगैरह का वो आपको मैंने बता दिया इसका। और यह है हिस्टोरिकल सिमेंटिक्स। अकॉर्डिंग टू पॉमर द टर्म सिमेंटिक्स वाज फर्स्ट, अब उसका जो हिस्टोरिकल है मतलब उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड जो है ना, अब हमने वो देखना है कि क्या है इनका। The term semantics was first used to refer to the development and change of meaning। मतलब कि जो semantics है ना ये फर्स्ट टाइम यूज की गई है, कब, was used to refer to the development and change of meaning। ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह या किसी भी मीनिंग के चेंज में, मतलब कि न्यू वर्ड बनाना है
इस लिहाज से, ठीक है। जैसे कि कोई भी वर्ड्स है, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये और इसका ओरिजिन क्या है। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर सिमेंटिक चेंजेस। जनरलाइजेशन ऑफ मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल, अब जनरलाइजेशन ऑफ मीनिंग क्या है कि किसी भी मीनिंग जो है, जो वर्ड उसका ओरिजिन ओरिजिन क्या है, ठीक है। अराइव ओरिजिनेट्स इन लैटिन, ठीक है, एरिपेयर, movement that ends at the banks of a river. Specialization of meaning, for example, girl originally referred to the children in general and was later restricted to female children only. ठीक है। Some changes are merely fortuitous, ठीक है, sorry, fortuitous. Money is related to Latin, ठीक है, Latin वर्ड जो है मोनो, इससे किया गया है बिकॉज मनी वाज मेड इन द टेम्पल ऑफ द गोडेस जोनो मोनेटो। अभी उसका ओरिजिन बताती है कि किस तरह से उन्होंने इस वर्ड को ओरिजिनेट किया है। सम चेंजेस अराइज फ्रॉम न्यू नीड्स, फॉर एग्जांपल कार वाज एन obsolete वर्ड फॉर कैरेट, ठीक है, until the motor car was invented। मतलब कि पास्ट में जो है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, फिर न्यू जो वर्ड है वो क्या ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसी तरह वन पावरफुल सोर्स ऑफ मीनिंग चेंज इज टेबू। A word that is used for something unpleasant is replaced by another time and again. A word that is used for something unpleasant, मतलब किसी भी अनप्लेजेंट चीज के बारे में यूज किया जाए, इज रिप्लेस बाय अनदर टाइम एंड अगेन। जैसे इंग्लिश हैज द टर्म्स प्राइवेट, लैबोरेटरी, टॉयलेट, बाथरूम, room, etc. Historical linguistics or comparative philosophy attempts both to reconstruct the history of English, history of languages and to relate languages apparently coming from a common source. Next है कि the study of the region and the use of particular word is called etymology. क्या है कि study of origin, उस वर्ड का origin क्या है, ठीक है, and the meaning of a and the uses of a particular word, उस particular जो word है उसका यूज क्या है, ठीक है ना। सिंपल हम कहेंगे कि ये क्या है, एटमोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन हिस्ट्री, ठीक है, किसी भी वर्ड की और इसकी मीनिंग की क्या है, ये हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे। It includes observations about previous meanings of a word or its precursors. ओके, मतलब कि जो वर्ड रूट्स हैं उनके बारे में, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्ड्स कैरिंग मीनिंग जो उनके लेते हैं, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ठीक है, कंपाउंडिंग, ठीक। तो उस हिसाब से द स्टडी ऑफ द origin of a particular word is called etymology. It includes observations about previous meanings of a word or its precursors. Etymological dictionaries attempt to quote at least the most recent origin of each word. Synchronic study must precede the diachronic study of language because we cannot study the change in a language until we have first established what the language was like at the time during which it changed, ठीक है, जब उसको चेंज किया गया। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कोई ना कोई स्टेटमेंट वगैरह ना, कि ये किसने कहा और किस टाइम में, इस तरह। Semantics in other disciplines. Semantics has not been the only concern of linguists. Philosophers, anthropologists, and psychologists have also shown their interest in the subject. Some philosophers have suggested that many philosophical problems may be solved by the study of ordinary language. ठीक है, कि कुछ ज्यादातर जो philosophers का क्या है कि उन्होंने क्या suggest किया कि काफी ज्यादा जो many philosophical problems, ठीक है, कि जितनी भी कोई philosophical problems हैं वो किस तरह से solve की जा सकती हैं ordinary language के साथ, अगर हम उसकी study करते हैं, ठीक है। For example, the problems of the nature or a problem of nature of good है, ठीक है, and evil, of right and wrong in moral philosophy. Traditional logic is also concerned with semantics, as of some of its proposals range from simple syllogism to highly complex logical syntax. हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल लॉजिक इज आल्सो कंसर्न, जो ट्रेडिशनल लॉजिक है वो किस चीज से कंसर्न करेगी, विद सिमेंटिक्स, एज सम ऑफ इट्स प्रपोजल्स रेंज फ्रॉम सिंपल सैलोगिज्म टू हाईली कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सिंटैक्स, ठीक है। लॉजिक मेक्स यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स फाउंड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या है कि लॉजिक मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट, अब यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, एंड और इट इस तरह के जो वर्ड्स है,
Anthropologists are also concerned with the language as an essential part of the cultural and behavioral patterns of the people. अब यहाँ पे क्या क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आल्सो कंसर्न विद लैंग्वेज। अब क्या है कि एज एन लैंग्वेज से किस तरह से कंसर्न कर रहे हैं कि एज एन एसेंशियल पार्ट, अहम हिस्सा ऑफ द कल्चरल एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द पीपल। लोगों के कल्चरल और बिहेवियर पैटर्न का एक एसेंशियल पार्ट है, अहम हिस्सा है। अ लिंग्विस्ट शुड नॉट इग्नोर दिस, मतलब कि लिंग्विस्ट जो है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पैटर्न्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय Menemnisky in his proposals concerning the context of situation है। आगे जहाँ पे देखें अब, it is also focused that how we process language both in its production and reception। हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोसेस जो है प्रोडक्शन और रिसेप्शन में जो है, बोथ में जो है, किस तरह से हम जो है वो कैसे हुआ, किस तरह से, ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे। इट इज लार्जली through the influence of certain psychologies that behaviorist and analysis of meaning have been proposed. One example अब जहाँ पे है, is to be found in the work of Charles Morris, his book Sign, Language and Behavior. He is more concerned with the signs and what they denote to signify। मतलब कि जो signs हैं जो यूज किए गए हैं वो क्या है, मतलब किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। आगे हम वो मतलब इसका थोड़ा सा देखेंगे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी जो यूज, सिमेंटिक्स एंड सेमियोटिक्स। मतलब इसमें आपने जो है वो सिंपल जो डेफिनेशंस आ रही हैं आपने वो देखनी है, कोई एग्जांपल आ रही है आपने वो याद करनी है, फिर ज्यादा डिटेल में आपने जस्ट एक बार रीड कर लेनी है। लिंग्विस्टिक मीनिंग इज अ स्पेशल सबसेट सिमेंटिक्स एंड सेमियोटिक्स। सिमेंटिक्स तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है कि मीनिंग इज, ठीक है, वो वो क्या कहते हैं इसको, सिमेंटिक्स क्या है, मीनिंग्स है वर्ड्स के। Linguist meaning is, sorry, linguistic meaning is a special subset of the more general human ability to use signs to convey meaning। क्या है कि वो साइन यूज किए जाते हैं मीनिंग्स कन्वे करने के लिए, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स टू इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर्स। अब ट्रैफिक लाइट्स क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, ठीक है, जिसमें वो क्या है कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसको दे रहा है, ड्राइवर को दे रहा है, एंड इवन टू वार्न दैट कि वो जो बत्ती लाइट है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो ड्राइवर को रुकने के लिए इशारा देगा, चलने के लिए इशारा देगा, ठीक है। तो वो क्या उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इट इज बिलीव दैट ह्यूमन लैंग्वेज डिफर्स इन काइंड एंड मोर देन अ डिग्री फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। अब ये क्या है कि इस चीज पे यकीन किया गया है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो डिफरेंट है इन काइंड मोर देन अ डिग्री फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, दूसरी लैंग्वेजेस से। अब यहाँ पे ना सिमियोटिक्स, सिमियोटिक्स क्या है, ये क्या है कि स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है। सेमियोटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ साइन, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ द साइन सिस्टम विच इज कॉल्ड सेमियोटिक्स, ठीक है। क्या है, सिंपल हम कह दें कि स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। जैसे ट्रैफिक लाइट्स है, अब वहां पे आपने उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि जो है ट्रैफिक लाइट्स है उसके जो है वो ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। Semiotics have probed the relationship that may be between the sign and the object. It represents or in social terminology between signifier and its signifier. अब यहाँ पे कि there are some important terminologies. Signifier, any material thing that signifies, जैसे words on a page। अब कोई भी पेज है उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं, अब फेशियल एक्सप्रेशन, कोई हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आएंगे, एन इमेज या उसकी जो तस्वीर जो दी गई है, ठीक है। समटाइम होता है ना कि एक तस्वीर दी गई होती है, हम उस तस्वीर को देखकर ही सारी एक स्टोरी जो है हम अपने माइंड में बना लेते हैं। सिग्निफाइड, द concept that a signifier refers to together, the signifier and the signified make up a meaning। Sign, the smallest unit of meaning, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट, कोई भी छोटा सा यूनिट है मीनिंग का जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ साइंस आर गिवन बिलो, डिस्टिंक्शन हाईलाइटेड बाय सी एस, ठीक है, पॉइंट्स बिटवीन आइकन, इंडेक्स एंड सिंबल। आइकॉनिक साइंस, साइंस वेयर द सिग्निफायर रिजेंबल्स द सिग्निफायर, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेनी है, मे बी आपको ये लॉन्ग शॉर्ट प्रोसेस में आ जाए। सिमिलरिटी बिटवीन अ साइन एंड व्हाट इज रिप्रेजेंट्स between a picture and its real life subject। Indexical signs, signs where the signifier is caused by the signifier। Okay,
ये आपने जो एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेने हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने सिंपल जो अपने वर्ड्स के जो मतलब कि ये जो जहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है डेफिनेशंस को। और साथ में बस इस एक को 2 बार आप जब रीड आउट करेंगे तो आपको जो है ये अच्छी सी समझ लग जाएगी इसमें उन्होंने क्या कहा है। मतलब कि आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, 1 से 2 बार आपने इसे रीड आउट कर लेना है। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो लेसन नंबर 3 में जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।